شہریار شہریار فرحان صاحب اسے پکارتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ جی پاپا کیا ہوا؟ وہ صوفے پر بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ نور اور عمیر کو اس نے بیڈ پر سلا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ بچے عبیرہ پر تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ غصے سے بولی۔ کیوں، آپ کو اس نے یہ نہیں بتایا کہ وجہ کیا تھی؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بیچاری تو اتنی ذلت کے بعد بھی نیچے کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، مجھے یہ سب زہرا بھابی نے کال کر کے بتایا ہے۔ وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر میرے سامنے میرے بچوں کو کوئی مارے گا تو میں اس کا وہی حشر کروں گا، اور اگر میری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو اور میں بھی اس کا وہ حشر کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لاوارث نہیں ہے، خبردار جو تم نے کبھی اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ فرحان صاحب وارننگ دیتے ہوئے بولے۔ شہریار حیران سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے؟ اپنی آنکھوں سے میں نے اسے اپنے بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا۔ شہریار بھی غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے عبیرہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ بچوں پر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتی، اور دوسری بات، اگر اس نے ایسا کیا ہے تب بھی کوئی بڑی وجہ ہوگی، پر افسوس تو اس بات کا ہے میں نے تمہیں بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو نہیں سکھایا تھا، پتہ نہیں یہ سبق کہاں سے سیکھ کر آئے ہو۔ فرحان صاحب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ تم بہت پہنچی ہوئی چیز ہو مس عبیرہ، میرے پاپا کو بڑی آسانی سے اپنی طرف کر لیا، لیکن میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ تمہیں بہت اچھے سے جواب دوں گا۔ عبیرہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس نے ٹیبل پر لگا دیا، تبھی فرحان صاحب شہریار کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ماموں میں نے کھانا لگا دیا، آپ بیٹھیں، میں شہریار اور بچوں کو بلا کر لاتی۔ وہ ٹیبل پر پانی کا جگ اور گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ اسے یہ تھا کہ فرحان صاحب اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس نالائق کو بلا کر لانے کی۔ عمیر اور نور سو چکے ہیں، چلو بیٹھو تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ فرحان صاحب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آج جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا علم ہے، فرحان صاحب نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ماموں جان وہ بدتمیزی کر رہے تھے، عبیرہ آہستہ سے بولی۔ مجھے اندازہ ہے، میں بھی ان دونوں کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہا ہوں۔ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک ہے، پر جو شہریار نے کیا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ فرحان صاحب معذرت انگیز انداز میں بولے۔ ماموں جو عمیر اور نور نے بدتمیزی کی وہ سب ان معصوموں کے دلوں میں ڈالی گئی تھی، ورنہ وہ دونوں بہت سویٹ ہیں۔ میں انہیں مارنے والی نہیں تھی، میں تو بس ڈرا رہی تھی، پر شہریار نے غلط سمجھ لیا۔ عبیرہ نیچے منہ کر کے بولی۔ اس گدھے کی تو تم بات ہی مت کرو۔ کہو تو میں عمیر اور نور سے بات کروں؟ نہیں ماموں، آپ ان سے کچھ مت بولے، مجھے اب ان کے بیہیویئر کی سمجھ آ گئی ہے۔ میں گارنٹی دیتی ہوں تھوڑے ہی دنوں میں وہ بالکل بدلے ہوئے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور شہریار، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرحان صاحب بولے۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، شاید وہ ابھی مجھے نہیں سمجھے، جب سمجھ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جبراً مسکرائی۔ فرحان صاحب نے کھانا کھایا، وہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے تو سونے چلے گئے۔ عبیرہ نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر وہ باہر گارڈن میں آ گئی، واک کرنے لگی۔ شمائلہ، جو تم نے ان معصوم بچوں کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں اب میں دوں گی۔ وہ گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں اکیلی واک کرتی رہی۔ جب 12 بج گئے تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، سامنے بیڈ پر عمیر، نور اور شہریار تینوں مزے سے سو رہے۔ عمیر اور نور پر کمبل ٹھیک کیا، خود صوفے پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں کھولے اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے سے دنوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا، وہ سب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں شہریار کی آج کی جانے والی باتیں نہیں جا رہی تھی۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ڈرامے باز شہریار جو اسے بیڈ سے دیکھ رہا تھا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ عمیر، نور اٹھو بیٹا، اسکول جانا ہے۔ وہ دونوں کے اوپر سے کمبل اتارتے ہوئے بولی۔ سونے دے، مجھے نہیں جانا۔ عمیر دوبارہ منہ پر کمبل لیتے ہوئے بولا۔ 5 منٹ میں فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ وہ ان کے کپڑے صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ شہریار تو صبح اٹھ کر جاگنگ پر چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں آئی، ناشتہ بنا کر دوبارہ ان دونوں کو اٹھانے چلی گئی۔ دونوں مزے سے کمبل میں سو رہے تھے۔ عمیر، جلدی اٹھو، اس نے زبردستی اسے اٹھا کر واش روم میں بھیجا۔ تبھی شہریار جو جاگنگ کر کے واپس آیا تھا، عبیرہ نے اسے فل اگنور کیا ہوا تھا۔ عمیر اسکول کا یونیفارم فل ریڈی کر کے باہر نکلا۔ شہریار نہانے واش روم میں چلا گیا۔ عبیرہ نے دونوں کو جلدی جلدی تیار کیا اور نیچے لائی۔ اس نے ان دونوں سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا چاہی، پر دونوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔
شہریار جیسے نہا کر کمرے سے باہر آیا اسے اپنے بیڈ پر اپنے کپڑے، واچ، والٹ سب کچھ رکھا ہوا ملا۔ اس نے ساری چیزیں واپس کبرڈ میں رکھیں اور کبرڈ سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے۔ تیار ہو کر نیچے آ گیا جہاں سارے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کر کے سب اپنے اپنے کاموں کی طرف چل دیے۔ فرحان صاحب نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ عبیرہ سب سے پہلے عمیر اور نور کے کمرے میں گئی۔ وہاں اس نے کچھ سیٹنگ کی اور بعد میں کچن میں آ گئی۔ سر، میں نے انٹرویو کے بعد ایک نیا مینیجر رکھ لیا ہے، اس کی سیکریٹری بولی۔ اچھا کیا۔ میری کتنے بجے میٹنگ ہے؟ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سر، آج آپ کی میٹنگ مسٹر ثاقب سے 12 بجے ہے۔ یہ میٹنگ ایف اے ہوٹل میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ سارا شیڈیول بول کر بتانے لگی۔ اوکے، مجھے مسٹر حمدان والے پروجیکٹ کی فائل لا کر دو۔ جی کرتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ سر، یہ مسٹر حمدان والے پروجیکٹ کی فائل ہے۔ فائل اس نے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم نئے ہو یہاں؟ اس نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی سر، میرا نام فہد ہے، میں یہاں مینیجر کی پوسٹ پر کل ہی اپوائنٹ ہوا ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، جاؤ۔ شہریار بولا۔ وہ چلا گیا۔ ہائے شہریار، شمائلہ مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یہ میرا آفس ہے اور میں یہاں کا باس ہوں، یوں منہ اٹھا کر کیوں اندر آئی ہو؟ اسے شمائلہ کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی تھی۔ کیا یار، تم میرے کزن ہو، اور کزن سے کون اجازت لے کر آتا ہے؟ وہ بے تکلف ہو کر کرسی پر بیٹھی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے آفس کے رولز کے بارے میں کتنا سخت ہوں۔ یہ میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تم بھی نہ یوں ہی غصہ کرتے رہتے ہو، میں تو بس کہنے آئی تھی آج لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ آئی نو، تم نے بھی اس گنوار کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ آخر اس نے تمہارے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ دوبارہ وہی باتیں کرنے لگی۔ شہریار کو ایک دم صبح کا ناشتہ یاد آ گیا جو بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا کر آیا تھا۔ شمائلہ کو وہ کچھ بولنے ہی والا تھا تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے فوراً کال بیک کی۔ ہیلو مسٹر شہریار، آپ اسکول آ جائیں، آپ کے بچوں کے متعلق ہمیں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے پرنسپل بولا۔ اوکے، آتا ہوں۔ شہریار کہتا ہوا کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کس کی کال تھی؟ شمائلہ فوراً بولی۔ اسکول سے کال تھی، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ تم شہلا کو بول کر ساری میٹنگز کینسل کروا دو۔ وہ یہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکلا۔ 1 گھنٹے میں وہ اسکول پہنچا، سیدھا پرنسپل آفس آیا۔ جی مسٹر شہریار، بیٹھیے۔ پرنسپل نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ایک طرف عمیر اور نور منہ نیچے کیے کھڑے تھے۔ جی کیا ہوا؟ آپ نے ایسے کیوں بلایا؟ شہریار بولا۔ دیکھیے مسٹر شہریار، آپ کے دونوں بچے آج کل کلاس میں ایک لڑکے سے جھگڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور یہ آج کا کام نہیں ہے، ہر روز ہی یہ دونوں کسی نہ کسی سے لڑتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ وارننگ دی پر یہ دونوں پھر اگلے دن ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ پرنسپل کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ شہریار نے سخت نظروں سے نور اور عمیر کو دیکھا۔ دونوں نے ڈر کے مارے نظریں نیچی کر لیں۔ یہ دیکھیے، ان کے گریڈز فل ڈی ہیں، دونوں نالائق بچے۔ ہر مہینے رپورٹ بک میں ان کے ڈی گریڈ شمار ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ پڑھاؤ تو آگے سے کچھ بولتے ہی نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں، ساری کلاس کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے۔ ایک ٹیچر نے فائل شہریار کے آگے رکھی۔ آپ کے پاس صرف لاسٹ چانس ہے، اپنے بچوں کو سدھاریں اور ان کو پڑھایا کریں، ورنہ ہم ان دونوں کو اسکول سے نکال دیں گے، پرنسپل نے صاف صاف لفظوں میں کہا۔ اوکے سر، میں ان پر توجہ دوں گا، آپ کو اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شہریار اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو کر بولا۔ چلو بیگ لے آؤ۔ شہریار نے دونوں کو کہا۔ ویسے بھی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ مل کر آفس سے باہر آ گیا۔ عمیر اور نور منہ نیچے کی اپنے بیگ لے کر آگے شہریار کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شہریار نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی گھر کے روڈ پر ڈال دی۔ ابھی وہ ان دونوں سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے اندر داخل کی، دونوں کو بازو سے پکڑ کر اندر آیا۔ فرحان صاحب آفس سے جلدی آ گئے تھے اور ابھی وہ عبیرہ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شہریار دونوں کو کھینچتا ہوا ان دونوں کے پاس لایا۔ عبیرہ نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ فرحان صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے ان 2 ہونہاروں کی وجہ سے۔ پتہ ہے آج پرنسپل نے اسکول بلوایا تھا ان دونوں کے کارنامے بتانے کے لیے۔ یہ دیکھیں فائل۔ شہریار نے غصے سے فائل ٹیبل پر پھینکی۔ عمیر اور نور دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ عبیرہ نے فائل اٹھائی۔ اتنی شرمندگی مجھے آج تک نہیں ہوئی جتنی آج اٹھانی پڑی۔ عبیرہ نے فائل اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، آپ کے بچے انتہا کے بدتمیز ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، 1 نمبر کے نالائق ہیں۔ شہریار غصے سے بولا۔ بتاؤ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے اور تم دونوں انتہا کے نالائق ہو۔
शहरयार ने दोनों को अपने सामने करके डांटना शुरू किया। दोनों ने रोना शुरू कर दिया। क्या हो गया, छोड़ें बच्चों को। अबीरा ने उठकर दोनों के हाथ छुड़वाए और एक तरफ किया उसे। तुम इस मामले में मत आओ, हटो साइड पर। शहरयार सख्त लहजे में बोला। क्यों ना आऊं मैं इस मामले में, ये मेरे बच्चों का मामला है और आपको कोई हक नहीं पहुंचता इन पर चिल्लाने का। आप बताएं, किस दिन आप इनके स्कूल की रिपोर्ट लेने गए, किस दिन आपने इन दोनों को बिठाकर पढ़ाया जो आज यूं इस तरह डांट रहे हैं। अबीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। फरहान साहब मुस्कुरा दिए। शहरयार एक पल के लिए तो चुप हो गया। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, अपनी हद में रहो। वो उंगली उठाकर बोला। डरती नहीं हूँ मैं, कर लें जो करना है, पर बच्चों पर चिल्लाने की इजाज़त मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। वो कहते हुए उन दोनों की तरफ मुड़ी जो बुरी तरह रो रहे थे। शहरयार ने फरहान साहब की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहे थे। आज पहली बार किसी ने शहरयार की बोलती बंद की थी। वो दांत पीसता हुआ लाउंज से बाहर चला गया। वो गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी को लिए ऑफिस की तरफ चला गया। समझती क्या है खुद को, बड़ी आई, मैं से इजाज़त लूँगा अपने बच्चों को डांटने के लिए। वो गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज़ करके बोला। तुम्हें मैंने जिस मकसद के लिए यहाँ रखा है वो जल्द अज जल्द पूरा करो, फिर मैं तुम्हें जितना बोलोगे उतने पैसे दूंगी, पर काम जल्दी हो जाना चाहिए। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम बस पैसे तैयार रखो, बहुत जल्द मैं ये काम पूरा कर दूंगा। आगे से आवाज़ उभरी। मुझे ये प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चाहिए, समझे? इसके बाद जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें मिलेगा। उसने बोलकर कॉल बंद कर दी। अरे चुप चुप। अबीरा उन दोनों को काफ़ी देर से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों रोए जा रहे थे। मामू जान, मैं इनके कपड़े चेंज करवा कर लाती हूँ, अबीरा कहती हुई उन दोनों को लेकर कमरे में आ गई। एक बात बताऊं, मैंने आज तुम दोनों के लिए मैक्रोनी बनाई है। वो जानती थी ये डिश उन दोनों की फेवरेट है। आप दोनों कपड़े चेंज करो, मैं मैक्रोनी लेकर आती हूँ, अबीरा कहती हुई किचन की तरफ चली गई। और जब वापस आई, दोनों कपड़े चेंज किए बेड पर मुंह बनाकर बैठे हुए थे। ये रही मैक्रोनी, चलो जल्दी जल्दी खाते हैं, अबीरा मुस्कुराते हुए ट्रे उन दोनों के पास रखते हुए बोली और ख़ुद भी साथ बैठ गई। सॉरी, उमैर और नूर आहिस्ता से बोले। शुमाइला आंटी गलत बोल रही थी। आप चुड़ैल नहीं हैं और ना ही आप गंदी हैं, आप तो अच्छी हैं। आपने आज हमें पापा की डांट से बचाया, हमारे लिए मैक्रोनी बनाई। उमैर बोला, वैसे तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ? अबीरा मुस्कुराते हुए बोली। वो मेरी एक दोस्त ने बताया चुड़ैलों के पाँव टेढ़े होते हैं, पर आपके तो सीधे हैं। नूर मासूमियत से बोली। अबीरा ने कहकहा लगाया। अच्छा चलो, अब हम तीनों दोस्त बन जाते हैं। हम बहुत मस्ती किया करेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, मज़े मज़े की डिशेस खाएंगे, अबीरा मुस्कुराते हुए बोली। ओके डन, नूर और उमैर दोनों एक साथ बोले। अच्छा, पर एक वादा करो, आज के बाद तुम दोनों किसी से बदतमीजी नहीं करोगे, सबसे अच्छे से बात करोगे। अबीरा दोनों को गले से लगाते हुए बोली। ओके नई मामा, नूर उसके गाल पर बोसा देते हुए बोली। तो अबीरा खुलकर मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं आ रहा था उमैर और नूर इतनी जल्दी समझ जाएंगे। शादी को 1 महीना गुजर चुका था। उमैर और नूर अबीरा से काफ़ी मानूस हो चुके थे। उसने सारे घर को संभाल लिया था। शहरयार अभी भी उससे काफ़ी चिढ़ता था, उसी तरह बात करता। वो बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। शहरयार हमेशा की तरह बेड पर फाइल्स फैलाए बैठा हुआ। शहरयार, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, वो उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली। बोलो क्या बात है? पैसे चाहिए? शहरयार ने एक पल को उसकी तरफ देख कर कहा। जी नहीं, मुझे आपके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि दोबारा एडमिशन ले लूँ। वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। व्हाट एडमिशन? मैडम ये भी बताओ कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, 11वीं में या 9वीं में? वो हंसते हुए बोला। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वो बेड से उठ गई, कमरे से जाने लगी। आपकी इत्तला के लिए मेरी माँ ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह BCom तक पढ़ाया है। आगे पढ़ नहीं पाई क्योंकि मुझ पर अपनी माँ की कुछ जिम्मेदारियाँ थीं। दूसरी बात, मैंने हमेशा खुद कमाया है, कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो एकदम रुकी और पलटकर शहरयार को देखा और कमरे से निकल गई। अजीब दिमाग ख़राब करके रखा है, मैंने ऐसा क्या कह दिया था? वो गुस्से में खुद से मुखातिब हुआ और बाहर गार्डन में आकर वो बैठ गई। वो बहुत दुखी हुई थी। क्या मेरी ज़िंदगी में मेरे शोहर का प्यार नहीं लिखा? क्या सारी ज़िंदगी शहरयार ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे? वो अपने हाथों को गौर से देखते हुए सोच रही थी, क्या हुआ, मेरी बेटी यूँ अकेली अकेली और इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई है? फरहान साहब उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए बोले। मामू आप अभी तक सोए नहीं? वो एकदम अपने ख्यालों से निकली। जब मेरी बेटी यहाँ अकेली और परेशान बैठी हो तो भला मुझे कैसे नींद आ सकती है? वो मुस्कुरा कर बोले। नहीं मामू, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। वो बात को टालना चाहती थी।
तुम मुझे अपने बाप की जगह मान कर बताओ क्या परेशानी है। फरहान साहब बोले, आप मेरे लिए मेरे अब्बा ही हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी आप सबके घर से चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। बस मैं चाह रही हूँ कि एमकॉम में एडमिशन ले लूँ, मेरा दिल कर रहा है। वो चेहरा नीचे झुकाए बोली, बस इतनी सी बात, एम परेशान हो रही हो। मैं कल ही इस शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, पर अभी तुम उठो और जाकर सो जाओ, सुबह की कामों में लगी हुई होती हो, कुछ अपना भी ख्याल रखा करो। फरहान साहब उसे डांटते हुए बोले और दोनों अंदर चले गए। अबीरा लाइट्स ऑफ करके कमरे में आ गई। शहरयार अभी भी काम कर रहा था। सोफे पर आई और सोने के लिए लेटी, मुझे कॉफ़ी ला कर दो। तभी शहरयार की आवाज़ उभरी। वो बहुत थक चुकी थी पर फिर भी कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी देकर वो दोबारा सोने चली गई। 5 मिनट में वो सो चुकी थी। रात के 3 बजे थे तब वो अपना काम मुकम्मल करके लैपटॉप साइड पर रख के सोने लगा। फाइल समेट चुका था और थक चुका था। जैसे ही बेड पर लेटा उसकी नज़र सामने सोफे पर सोई हुई अबीरा पर पड़ी। चादर लिए वो सिमट कर सो रही थी। कुछ बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे। उस वक्त वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। खूबसूरत तो तुम हो, पर इस खूबसूरती के जाल में मैं नहीं आने वाला मिस अबीरा, वो उसे देखते हुए खुद से बोला और आंखें मूंद गया। अगली सुबह वो उठी, नमाज पढ़कर नीचे नाश्ते की तैयारी करने आ गई। बच्चों को तैयार करके वो नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। मामा मुझे स्कूल नहीं जाना, नूर मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। क्यों नहीं जाना, क्या हुआ? अबीरा उसकी प्लेट में पराठा रखते हुए बोली। मुझे बुखार है, वो खांसते हुए बोली। अबीरा ने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा जो वाकई गर्म था। बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी, जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल जाओ। शहरयार कुर्सी को खींचकर उस पर बैठते हुए बोला। इसे बुखार है, तबीयत खराब में वो कैसे जाएगी? अबीरा शहरयार की तरफ देखकर बोली, हर बात में टांग मत अड़ाया करो। नूर उमैर, पहले ही आप दोनों की बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, मुझे किसी का कोई बहाना नहीं सुनना। शहरयार दोनों को वार्निंग देते हुए बोला। अबीरा के मना करने के बावजूद शहरयार खुद उन दोनों को स्कूल छोड़ने चला गया। फरहान साहब को आज ऑफिस में कोई काम नहीं था। वो नाश्ता करने के बाद अपने किसी दोस्त से मिलने चले गए। अबीरा का दिल सुबह से बहुत घबरा रहा था। वो कब की इधर उधर के चक्कर लगा रही थी। घर में अकेली थी, तभी लैंडलाइन पर कॉल आई। कॉल रिसीव की। सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जिनके फ़ोन से मैं कॉल कर रहा हूँ उनके साथ 2 बच्चों का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं, आप जल्दी से आ जाएं। क्या? या अल्लाह, मेरे बच्चे, अबीरा रोती हुई बोली। आगे से उसे अस्पताल का एड्रेस बताया गया। अबीरा फ़ोन को वहीं छोड़कर चादर लिए बाहर भागी थी। ड्राइवर छुट्टी पर था। वो बाहर रिक्शे में आ बैठी और सीधी अस्पताल पहुंची। बार बार शहरयार का नंबर डायल कर रही थी पर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो भागती हुई कॉरिडोर में आई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो वहाँ खड़े एक डॉक्टर से पूछने लगी। अभी जो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है उसके पेशेंट इस रूम में हैं। डॉक्टर ने एक तरफ इशारा किया और वो भागते हुए उस कमरे में गई। शहरयार बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा ऑफिस पहुंचा। आज उसकी मीटिंग थी। वो सीधा मीटिंग रूम में पहुंचा जहां पहले से एक क्लाइंट बैठे हुए थे। 4 घंटे मीटिंग चली। 4 घंटे के बाद वो अपने ऑफिस में आया। पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसे ऑन किया। 50 मिस्ड कॉल्स अबीरा के नंबर से आई थी। वो परेशान हो गया और फ़ौरन अबीरा के नंबर पर कॉल की। शहरयार आगे से अबीरा के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? शहरयार परेशान हो गया। कुछ ठीक नहीं है, अबीरा ने रोते हुए कहा। उसे सारी बात बताई। शहरयार के हाथों से फ़ोन स्लिप हो गया और ज़मीन पर गिर गया। उल्टे पांव ऑफिस से भागा। अंधाधुंध गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा। उस रूम में आया जहां अबीरा उमैर और नूर के पास बैठी हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, बेड पर उमैर और नूर लेटे हुए थे। कुर्सी पर अबीरा बैठी रो रही थी। शोर की वजह से उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के सामने शहरयार को खड़े पाया तो भागकर उसके गले लग गई, रोने लगी। तभी डॉक्टर अंदर आया। शहरयार ने उसे खुद से अलहदा किया। मिस्टर शहरयार, ये आप दोनों की खुशकिस्मती है कि आपके बच्चों की जान बच गई, वरना एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। डॉक्टर कमरे में आकर बच्चों को चेक करते हुए बोला, आपकी बेटी का बाजू टूटा है और थोड़ी सी चोटें लगी हैं। आपके बेटे को मामूली सी चोटें आई हैं जो हफ्ते में ठीक हो जाएंगी, पर आप इन दोनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ देर बाद वो दोनों होश में आ जाएंगे। रात तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर चेक करके बाहर चला गया। अबीरा दोबारा उनके पास आकर बैठ गई। शहरयार ने आगे बढ़कर दोनों को प्यार किया। रिलैक्स, दोनों ठीक हैं, शहरयार ने अबीरा की हालत देखकर कहा। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। देखें वो कितनी छोटी है और इतनी ज़्यादा चोट लगी है। अबीरा उसके बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। शहरयार ने दोनों के सरों पर बोसा देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आ गया। मामा, नूर ने आंख खोलते ही अबीरा को पुकारा, जी मेरी जान, मैं यहीं हूँ।
अबीरा अपने आंसू पोंछकर उसके पास बेड पर बैठकर बोली। तभी उमैर को भी होश आ गया। उसने भी उठकर अबीरा को ही पुकारा। रात को छुट्टी मिल गई और शहरयार तीनों को घर लेकर आ गया। ड्राइवर अभी अस्पताल में था, उसको काफ़ी चोटें लगी थी। फरहान साहब परेशान से उनका इंतज़ार कर रहे थे। शहरयार उमैर को उठाए और अबीरा नूर को उठाए हॉल में दाखिल हुए, जहां फरहान साहब बेचैन होकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। उनको देखते ही वो उनकी तरफ बढ़े। आगे बढ़कर दोनों बच्चों को गले से लगाया। पापा, इनको आराम करने की ज़रूरत है, मैं इन्हें कमरे में ले जाता हूँ, शहरयार नूर को उठाते हुए बोला। और फरहान साहब उमैर को लिए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गए। अबीरा किचन में गई और सूप बनाने लगी। वो सूप बनाकर कमरे में लाई, जहाँ उमैर और नूर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे। शहरयार और फरहान साहब से बातें कर रहे थे। चलो दोनों जल्दी से ये सूप पी लो। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास बैठी। मामा नहीं पीना, उमैर मुंह बनाकर बोला। उमैर बेटे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चलो मुंह खोलो। अबीरा उन दोनों को सूप पिलाने लगी। मैं इन दोनों का सदका देकर आता हूँ, फरहान साहब अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोले और कमरे से बाहर चले गए। शहरयार बेड की एक साइड पर आकर बैठा। ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों को फोर्स करके स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। शहरयार उमैर के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। जो होना होता है वो होकर रहता है, इसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका कसूर नहीं है। अबीरा नूर का मुंह साफ करते हुए बोली। मामा, मुझे यहीं सोना है आपके साथ। शहरयार पास बैठा उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो उसे देखते हुए बोला। क्या? मैं समझी नहीं। अबीरा उसकी तरफ देखकर बोली। यही, मेरे बच्चों के साथ इतना अटैच क्यों हो रही हो? इसके पीछे क्या मकसद है तुम्हारा? वो उसकी तरफ आया। क्या मतलब? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी इन बातों का क्या मतलब है? वो बेड से खड़ा होकर उसकी तरफ आया। आपकी इन सब बातों का क्या मतलब है? वो हैरानगी से बोली। वही मतलब जो तुम समझ रही हो। क्यों इतना अटैच हो रही हो? यहाँ सारी जिंदगी रहने का प्लान है या मामू के पैसे हथियाने की? बच्चे सीढ़ी हैं। वो उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए बोला। मुझे आपकी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा है। क्या आप हर वक्त अपने पैसों का रोब जमाते रहते हैं? जाइए अपने पापा से पूछ लीजिए। मेरे घर में वो आपका रिश्ता खुद लेकर आए थे। मेरी माँ ने हाथ फैलाकर मुझे आप लोगों को नहीं दिया। छोड़े मेरा बाजू। वो गुस्से से कहती अपना बाजू छुड़वाती हुई बाहर निकल गई। तुम जैसी हर लड़की के ये ड्रामे ही होते हैं। शहरयार तंजिया अंदाज में हंसा। मिस्टर शहरयार, ज़रूरी नहीं एक इंसान बुरा निकल आए तो सारी दुनिया ही बुरी हो जाती है। कभी अपनी आंखों से ये नफरत और पैसे की पट्टी उतार कर देखें, बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। और जहाँ तक रही बात बच्चों की, तो आज के बाद इनके और मेरे रिश्ते पर शक करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत दिल से मैंने इन्हें अपने बच्चे माना है। जिस दिन आपको मेरी ज़ात पर यकीन आ जाएगा, उस दिन शायद आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलेंगी। अबीरा कहती हुई नूर के साथ लेट गई। वो दोनों तो गहरी नींद सो चुके थे। अबीरा मैडम, अपनी ये खुशफहमी आज ही ख़त्म कर लो कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, शहरयार ने बेड की दूसरी तरफ लेटते हुए कहा। ऐसे ही हवा में तीर फेंका उसने। जिस दिन शादी करेंगे मुझे भी बुलवा लीजिएगा, आ जाऊंगी। वो कहती हुई आंखें मूंद गई। रात के 2 बजे अबीरा की आंख खुली। उसने देखा नूर बुखार में तप रही है। जल्दी से उठी और सारी रात वो उसे पट्टियां ठंडे पानी में भिगो भिगो कर लगाती रही। सुबह के वक्त उसका बुखार कुछ कम हुआ। वो उठी और रोजमर्रा काम करने लगी। शहरयार जॉगिंग से आ चुका था और नहा धोकर तैयार होकर नूर और उमैर के पास बैठा था, जो उठ चुके थे। आपका नाश्ता मैंने टेबल पर लगा दिया है। अबीरा हाथ में ट्रे पकड़े उमैर और नूर के लिए नाश्ता लेकर अंदर कमरे में आई। शहरयार नीचे चला गया। नाश्ता करने के बाद वो जैसे ही निकलने लगा, दरवाजे पर शुमाइला और फाखरा बेगम दाखिल हुई। शहरयार, मेरे बच्चे नूर और उमैर कहाँ हैं? मुझे तो अभी पता चला। मैं फ़ौरन शुमाइला को लिए आ गई। फाखरा बेगम रोता हुआ मुंह बनाकर बोली। ऊपर मेरे कमरे में आप मिल लें, शहरयार कहता हुआ बाहर निकल गया। दोनों ऊपर चली गईं। हाय हाय, मेरे बच्चों को किस मनहूस की नज़र लग गई। ये किस तरह खिला रही है? हट, मैं अपने बच्चों को खुद खिलाती हूँ। फाखरा बेगम अबीरा से सूप का बॉल छीनते हुए बोली। आखिर को है तो सोतेली माना, बच्चों का भला क्या ख्याल रखेगी? वो अपने मुंह से जहर उगल रही थी। अबीरा खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। सोतेली कुछ नहीं होता, वो हमारी मामा है, उमैर गुस्से से बोला। शुमाइला, तुमने जो इन मासूम बच्चों के दिलों में जहर घोला था, देखो मैंने सब निकाल दिया। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आई यूं छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की बातें सिखाते? हाय हाय, देखो हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अरे ये हमारे ही तो बच्चे हैं, हम क्यों इनको कुछ उल्टा सीधा सिखाएंगे?
फाखरा बेगम ने शहरियार को आते देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। अबीरा हैरानगी से उन्हें देखने लगी। ये सब हो क्या रहा है? शहरियार अंदर आते हुए बोला। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेने आया था। हाय हाय शहरियार, तेरी ये बीवी हमें बोल रही है हम इस घर में ना आया करें, हम तेरे बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं। चल शुमाइला, इतनी बेइज्जती के बाद हमें यहाँ नहीं रुकना। वो झूठ मूठ रोते हुए बोली। रुकें चची जान। शहरियार ने उन्हें रोका। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इतनी बकवास कैसे कर सकती हो? अभी के अभी माफ़ी मांगो इनसे। शहरियार उसके पास आया, गुस्से से बाजू पकड़ते हुए बोला। मैंने ऐसा कुछ? अबीरा अभी कुछ बोलने ही लगी थी कि शहरियार बोल पड़ा। मैंने क्या कहा? कोई बहस नहीं, माफ़ी मांगो। वो दांत पीसते हुए उसके बाजू पर गिरफ्त को टाइट करते हुए बोला। अबीरा की आंखों में आंसू आ गए। शिकायती आंखों से शहरियार को देखा, फिर अपने आप को संभालते हुए अपना बाजू छुड़वा कर वो फाखरा बेगम के पास गई। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकले हों, वो आहिस्ता से बोली। फाखरा बेगम तंजिया अंदाज में मुस्कुराईं। अबीरा उनको इग्नोर करके वापस नूर और उमैर की तरफ आई। अपनी आंख के कोने से उसने आंसू साफ किया जो शहरियार ने देखा, जैसे उसकी आंखें शिकवा कर रही हों। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। वो शुमाइला को लिए घर चली गई। शहरियार अपने माथे को मसलता वहां से निकल गया।